Hello students, welcome you all here. I hope you all are well in your home and continuing your studies. As you can see in this video, today we are going to discuss chapter number 8, which is Introduction to Trigonometry of class 10th. Okay. To start the chapter, first of all you have to know the meaning of the word trigonometry. This trigonometry word is derived from the Greek word and it is divided into three parts: tri plus gon plus metron. Okay, tri means 3, gon means side, and metron means measure. Okay, 3 sides measure. Basically, trigonometry is the branch of mathematics in which we will discuss or see the relationship between the angles and sides of a triangle. Okay, and this trigonometrically is always applies on right angle triangle. As you can see in this figure, this is one right angle triangle, triangle ABC, in which angle B is 90 degree. So according to this figure, this AC is called the longest side of this triangle, and this longest side is known as the hypotenuse of a triangle, and this BC is the base of triangle, and this AB is the perpendicular of this triangle. Okay, so first of all we will know about trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios we will study in this chapter. Okay, that is, first is sine, second is cos, third tan, fourth cosec, fifth sec, and cot. These are the 6 trigonometric ratios which we will deal in this chapter, that is sine, cos, tan, cosec, sec, and cot. Okay, so basically we will find the angles here. Suppose this is the angle, okay, angle C. If we suppose this angle as theta, this is the symbol of called theta. Okay, so if we find this theta, that is sine of theta. Okay, sine theta. So the sine theta is always perpendicular by hypotenuse. ओके, अगर इस एंगल को हम लोग निकालेंगे साइन थीटा को, तो ये कैसे निकलेगा? इसका अपोजिट साइड क्या है? एज ए बी, जो कि परपेंडिकुलर है, और एच जो है ये हाइपोटेन्यूस ए सी. ओके, तो साइन थीटा का ये फॉर्मूला क्या हो गया? दैट इज पी बाई एच. ओके, सिमिलरली इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कॉस थीटा को निकालें, ओके, कॉस थीटा क्या हो जाता है? दैट इज ऑलवेज बी बाई एच. ओके, B means this BC and H means this AC. Okay, sin theta is P by H, cos theta is B by H, and tan theta is P by B. Remember this. Okay, if you remember these three, you can automatically find these rest of the 3 trigonometric ratios. Okay, sin theta P by H, cos theta B by H, tan theta is P by B. Okay, now cos theta is the reciprocal of sin theta. Okay, cos theta, sin theta मेरा क्या है? P by H, तो cos theta क्या हो जाएगा? H by P. Okay, this is theta. सिमिलरली sec theta अगर हम लोग निकालेंगे, sec theta जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है. अगर cos B by H है तो sec क्या हो जाएगा? sec थीटा हमारा हो जाएगा h बाई बी, एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. ओके, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मेरा रिवर्स हो जाएगा, दैट इज b बाई पी. ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को. ओके, हम लोग अभी इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाले इसको. ओके, अगर यही थीटा अगर इस एंगल में चला जाए, ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस एंगल को कंसिडर करें थीटा को, सपोज इट इज थीटा डैश, सपोज, ओके, इफ वी फाइंड हेयर, इसको भी देख लो, जैसे अगर हम लोग एंगल मेरा उठ के अगर यहाँ पे चला जाए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू, तो साइन थीटा मेरा पी बाई एच ही होता है। तो याद रखोगे, अगर थीटा डैश यहाँ से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इसका पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका सामने वाला साइड, ठीक है, दैट इज बी सी, पी इसका अब चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा दैट इज बी सी बाई हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, ओके, तो एच मेरा क्या है यहाँ पे ए सी, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकाले अगर कॉस ऑफ थीटा डैश, ओके, कॉस थीटा क्या होता है मेरा बी बाई एच, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अब मेरा बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो बेस होगा मेरा ये होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा ए सी, सो दिस इज ए बी बाई ए सी, ओके। नाउ tan ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू, ओके, tan निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, ओके, तो इस एंगल का p क्या हो जाएगा, हमेशा अपोजिट वाला साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड में, तो p मेरा क्या हो जाएगा, बी सी बाई एच इज ए सी, ओके। इसी तरह हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा डैश इज इक्वल टू, बस इसको रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, कॉसेक थीटा हमेशा साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन मेरा अगर बी सी बाई ए सी है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज ए सी बाई बी सी। सिमिलरली सेक ऑफ थीटा डैश अगर निकाले तो ये हो जाएगा मेरा, सेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी, एच बाई बी, ओके, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में एच क्या होगा मेरा, एच इज फिक्स ऑलवेज, रिमेंबर दिस, ओके, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होगा, बस मेरा बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज करेगा, ठीक है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग एच को अगर देखें तो एच मेरा क्या हो जाएगा, ए सी हाइपोटेन्यूज, एंड बेस मेरा क्या हो जाएगा, ए बी, दैट इज ए सी बाई ए बी, ओके, एंड कॉट थीटा डैश, कॉट थीटा क्या होता है, दैट इज बी बाई पी, रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan मेरा p बाई बी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b बाई पी, सी का रेसिप्रोकल। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, इसका बेस क्या हो जाएगा, ये ए बी बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, दैट इज ए बी बाई बी सी, ठीक है, ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ओके। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, किसी भी एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ओके। सो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का निकाले तो साइन ऑफ थीटा, इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो साइन थीटा निकालेंगे तो p बाई एच ए बी बाई ए सी, ओके, कॉस थीटा क्या होगा, b बाई एच होता है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, नीचे ये बेस हो गया बी सी बाई ए सी, बी बाई एच। सिमिलरली tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो p मेरा क्या हो जाएगा, ये ए बी, और b क्या हो जाएगा, बेस बी सी, ठीक है। अगर ये तीनों आप लोग को याद हो गया तो साइन कॉस टेन का रेसिप्रोकल क्या क्या होता है, कॉसेक सेक कॉट, याद रखोगे, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स होता है, इसको याद रखोगे, और बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ एंगल, ओके। सो ये बेसिक कंसेप्ट आप लोग को जानना है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। सो आफ्टर दैट हम लोग एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन है, सी दिस, हाउ वी विल यूज दिस इन दिस क्वेश्चन, ओके। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ वन फिगर हेयर,
This is a right angle triangle A B C. Here it is mentioned right angle at B. Right angle कहाँ ले लिए? B में ले लिए. Okay. And the sides are given. AB is equal to 24 centimeter. So this is 24 centimeter. BC is equal to given 7 centimeter. Okay. So BC is here, that is 7 centimeter. Okay. These two sides are given in this right angle triangle. So you have to determine the sine of A, cos of A, sine C and cos C. Okay. So you see in this figure, these two sides are given. That is the perpendicular and base is given. Now by applying the Pythagoras theorem in this figure, you can easily find out this side AC. Okay. So this is simple. How you will find this side here? See the solution. Okay. So you all know by Pythagoras theorem, so AC, you will have to find the side AC, that is root over AB square plus BC square. Okay. Now putting the value here, AB is 24 centimeter given, that is 24 square plus BC is 7 square. Okay. Now see, 24 square you all know, that is 576 plus 7 square is 49. Now add both these value, 6 and 5, carry 1, that is 625. And you all know the root of 625 is 25 centimeter. So now we will get the value AC, that is 25 centimeter as hypotenuse. After getting these three, you can easily find out the sine of angle A. Now see, in first you have to find the sine of angle A. Okay, with respect to angle A, you have to remember the angle, sine of angle A. Angle A, that means आप लोगों को ये एंगल देखना है, ठीक है. इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको साइन ए निकालने बोला जा रहा है. ओके. तो साइन ए का वैल्यू क्या था, मैंने बताया था, साइन इज पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. ओके. सो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो इसका पी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड वाला, अपोजिट साइड. ओके. सो दिस इज द पी परपेंडिकुलर with respect to this angle, P by H. H is always fixed, this is the H. So H is AC. So sine A, you will write like this, sine A is P by H. So here you will write P by H, perpendicular by hypotenuse. So P is what? That is BC, side BC, by H is AC. Okay. You are having these two sides, BC is 7 centimeter by AC is 25. So sine of angle A, that is equal to 7 by 25. Okay, this is your answer simply. Similarly, here cos A, you have to find the cos of A. So you will write again like this, cos A is equal to, you know the formula of cos theta, that is B by H, base by hypotenuse. Okay. So from the angle A, with respect to angle A, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखो, इसके एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, दैट इज ए बी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी. ओके. सो कॉस ए इज व्हाट, बी बाई एच. सो बी बेस इज व्हाट, ए बी बाई हाइपोटेन्यूज इज ए सी. सो ए बी बाई ए सी, you are having the value AB is, that is 24 by 25. Okay. This is the first one, sin A and cos A. You will get these two values. In the second one, you have to find the sin C and cos C. Okay. Now see how we can find sin of C. Now see the angle. This is angle C. Now you have to find the sides with respect to this angle C. अब आपको ये एंगल के रिस्पेक्ट में साइन C को निकालना है, ठीक है. तो साइन का जो फॉर्मूला है, दैट इज ऑलवेज P by H. You will write here P by H. Okay. So with respect to this side P, परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के अपोजिट वाला साइड, दैट इज AB, P by
h that is AC. So here AB by AC, so sin of C हम लोग क्या लिखेंगे, AB by AC. ओके, AB कितना दे रखा है 24 and AC is 25, so our value is 24 by 25. Okay, now you have to find the cos of C. Right here cos of C. So with respect to this angle C, so cos C is what formula, B by H, always remember, base by hypotenuse. Okay, so इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा मेरा, ये नीचे वाला साइड BC, B by H that is always fix AC. So BC by AC is equal to BC by AC. Okay, so BC is how much, BC is your 7 centimeter by AC is 25 centimeter. I hope you all will get this, how we can find the trigonometric ratios. Okay, this is all about the solution of question number 1 exercise 8.1. okay, this is very simple. Now see the question number 2. okay, in the given figure 8.13 find tan A minus cot R, tan P minus cot of R. okay, here two trigonometric ratios are used, that is tan and cot. okay, tan P और cot R निकालना है. okay, so see here, in this triangle two sides are given, PQ and PR, so we have to find the third side QR. so by using Pythagoras theorem you can easily find out the side QR. okay, QR कैसे निकालेंगे, QR is equal to, you will write here by Pythagoras theorem. okay, QR कैसे निकालेंगे, longest side that is PR का स्क्वायर माइनस ऑफ PQ का स्क्वायर. ओके, ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स कैसे निकाला जाता है. ठीक है, सो QR हमको ये साइड निकालना है पहले. सो PR कितना दे रखा है, दैट इज़ 13 स्क्वायर माइनस PQ दे रखा है 12 का स्क्वायर. सी हियर 13 स्क्वायर इज हाउ मच, 169 माइनस 12 स्क्वायर इज हाउ मच, दैट इज 144. 169 minus 144, that is 5 and 2, that is equal to square root of 25 is 5 centimeter. This is our 5 centimeter. अब हम लोग को निकालने बोला जा रहा है क्या, tan p माइनस कॉट आर. ओके, सो कैसे निकालेंगे हम लोग, tan ऑफ p, पहले इसको फाइंड करेंगे. tan p क्या होता है, tan का फॉर्मूला p बाई b. ठीक है, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं. सी tan थीटा क्या होता है, p बाई h, सॉरी p बाई b. ओके, हमको निकालना है tan ऑफ p, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल p. ओके, tan p मेरा क्या हो जाएगा, p बाई b. तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में p क्या हो जाएगा, ये QR, दैट इज QR बाई b मेरा क्या हो जाएगा, PQ. ओके, QR इज गिवन 5 बाई PQ इज आवर 12. सो tan p का वैल्यू निकल गया 5 बाई 12. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड cot ऑफ r. सो हियर यू विल राइट cot ऑफ r इज इक्वल टू, cot मेरा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल मैंने बोला था, tan अगर p बाई b होता है तो cot होता है b बाई p. ओके, रिमेंबर दिस. सो cot ऑफ r अब हम लोग देखेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट में. ओके, cot ऑफ r क्या हो जाएगा, b बाई p. इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो b मेरा क्या हो जाएगा, QR बाई b बाई p मेरा क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड, दैट इज PQ. तो ये मेरा क्या हो गया, QR is 5 centimeter by PQ is 12 centimeter. Now we are getting these two values and we have to find the tan of P minus cot of R. Okay, so tan P is what, how much, 5 by 12 minus 5 by 12. You all know these two are positive and negative value, so it is automatically cut, that is, so our value is 0. ठीक है, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0. ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड
the trigonometric ratios. Okay, now in the next video we will discuss some more question based on this exercise. Okay, thanks all of you.